Hi guys, this is Paulos and today we'll learn about Facebook ads. In this course, I will take you through step by step what Facebook ads are and what are the ads type. I will be speaking a mix of English and Hindi in this particular video and in the upcoming videos as well. So आप लोग इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पॉइंट वन, आप लोग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं एंड द आइडियाज ऑफ फेसबुक एड्स टू ग्रो योर करियर और बिजनेस. Point two, you should be able to plan, strategize, run, optimize successful campaigns of any budget from scratch. Point three, you would be an expert of all bid strategies and bid models. Point four, you will have the knowledge of all tools which can help you to run a successful campaign. Now the question is, are ads on Facebook worth it? So the answer is yes. Point one, it's a great way to reach new customers and grow your business. Two, Facebook allows you to target your audience based on their gender, their age, location and interests. Point थ्री, आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है या फिर किसी भी तरह के कंटेंट पे एंगेजमेंट शो किया है, चाहे वो आपके फेसबुक पेज पे हो, वीडियोस पे हो, एड पे हो या फिर किसी भी इवेंट पे एंगेजमेंट शो की है आपकी. पॉइंट फोर, इट्स बजट फ्रेंडली टू. So now let's talk about training objectives. Point one, you will have the basic understanding of media buyings, their difference, their drawbacks, their benefit. Point two, you will have the understanding of key formats, targeting, functionality, and features. Point three, lists of the ads placements. Point four would be platform navigation, जो कि इस सेशन के बाद मैं आपको go through करवाऊंगा. Now let me introduce you what Facebook ads is and the potential of it. So Facebook ads are paid messages that businesses place on Facebook and its platform. Now अब हम देख लेते हैं Facebook पे, Instagram पे, Messenger पे कितना एक्टिव यूजर्स हैं. Facebook पे है 2.9 बिलियन, Instagram पे है 1.3 बिलियन, Messenger पे है 1.3 मिलियन एंड WhatsApp पे है 2.4 मिलियन. सो अभी हमें जो फोकस करना है फर्स्ट थ्री प्लेटफॉर्म्स को ही फोकस करना है, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मैसेंजर है. अगर आप रिसर्च करते हो सो विल फाइंड 70% ऑफ इंटरनेट यूजर्स आर एक्टिव ऑन वन ऑफ द मेटा प्लेटफॉर्म्स, be it Facebook, be it Instagram, be it WhatsApp or Messenger. So Facebook offers two buying types. One is auction, the second one is reach and frequency, जिसको हम शॉर्ट में RNF भी बोलते हैं. So दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, लेट्स अंडरस्टैंड. Auction buying offers more choices, efficiency and flexibility with less predictable results. अगर हम बात करते हैं रीच एंड फ्रीक्वेंसी की, तो रीच एंड फ्रीक्वेंसी buying lets you plan and buy your campaigns in advance with predictable ad delivery and more control over your settings. Auction buying type में you optimize to an action and pay what you are willing to spend. ऐसे ही RNF में आप कैंपेन्स को एडवांस में ही रिजर्व करते हो, बुक करते हैं. इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट है कि आप ऑक्शन बाइंग टाइप में मैनुअल बिडिंग कर सकते हैं. आप सीपीसी, सीपीवी, सीपीएम को फोकस करके ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह कर सकते हैं. एंड अगर हम बात करते हैं आरएनएफ में, तो आरएनएफ आपको एक गारंटीड रीच फिगर प्रोवाइड करता है एंड उसके अंदर आप फ्लेक्सिबल फ्रीक्वेंसी कैप भी डाल सकते हैं इंटरवल पे. फॉर एग्जांपल 5 इंप्रेशंस पर डे. एंड आपको यहाँ पर एक मैक्सिमम एक्सपोजर मिलता है अपनी ऑडियंस पूल के लिए. दोनों का एक ड्रॉबैक है, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा, ऑक्शन में आपको लेस प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं एंड आरएफ में आपका एक ड्रॉबैक ये है कि कम से कम आपके पास 2 लाख ऑडियंस साइज होना चाहिए एंड इसमें आप लिमिटेड मिड फ्लाइट एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं. एंड किसके लिए आइडल्स है? ऑक्शन जो आइडल है लोअर फनल कैंपेन्स के लिए एंड आरएनएफ कैंपेन जो होती है, आरएनएफ बाइंग टाइप्स जो होती है, वो अपर फनल के लिए ज्यादा सुटेबल होती है. बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऑक्शन बाइंग टाइप को चूज नहीं कर सकते अपर फनल के लिए. Now let's talk about targeting. This option is available in the audience section of an ad set creation that allows you to refine the group of people you want to show your ads to. So basic book offers three types of audiences such as saved audiences, custom audiences and lookalike audiences. So जो तीनों में जो differences है, हम आगे की वीडियोस में हम आगे इस चीज को कवर करेंगे. बट अभी हम फोकस कर लेते हैं ये टाइप प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन कौन सी ऑडियंस होती है, उसके क्या 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 डिफरेंसेस है. सो सेव्ड ऑडियंस आपको प्लेटफॉर्म से ही क्रिएट कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, एज, लोकेशन, बिहेवियर एंड कनेक्शन.
अगर हम बात करते हैं कस्टम ऑडियंस की, तो कस्टम ऑडियंस आप फर्स्ट पार्टी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं थ्रू ईमेल लिस्ट्स, एंगेजर्स ऑन प्लेटफॉर्म, चाहे वो आपके वीडियोस पर हो या फिर किसी भी तरह का इंटरेक्शन आपके फेसबुक पेज पे, वेबसाइट के थ्रू भी आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्टी ऑडियंस की, तो ये ऑडियंस डेटा इंटेलिजेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं जो यूजर्स एक्टिवली लो, मिड, हाई वैल्यू गुड्स में डील करते हैं, such as credit card users or car owners. Now let's talk about placements. Placements is the place where you show your ads to, depending on their objective you choose when you create your campaign. हर एक प्लेटफॉर्म पे कितनी प्लेसमेंट्स होती है वो देखते हैं। फेसबुक पे फीड, राइट कॉलम, इंस्टेंट आर्टिकल्स, वीडियो फीड्स, इन स्ट्रीम वीडियोस, स्टोरीज, मार्केट प्लेस, सर्च तरह की आपको प्लेसमेंट्स मिलते हैं जिसको हम इन्वेंटरी भी बोलते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पर फीड, स्टोरीज एंड एक्सप्लोर की जो इन्वेंटरी, वहाँ पर आप अपनी एड्स को शो कर सकते हैं। एंड अगर अब मैं बात करता हूँ मैसेंजर की, तो मैसेंजर पे 3 तरह की इन्वेंटरी अवेलेबल है: इनबॉक्स, स्टोरीज एंड स्पॉन्सर्ड मैसेजेस। अब हम देखते हैं व्हाट फेसबुक पिक्सल इज। It is just a piece of code installed on your website that captures events. Events can be add to cart, add to wish list, complete registration, purchase, subscribe और view content. Facebook Pixel first party audience build करने के लिए भी काफी helpful होता है. Now let's see about campaign structure. So you create campaign on Facebook in 3 levels. First is campaign, then ad sets, then ads. सो जो कैंपेन है, कैंपेन के अंदर आप अपनी नेमिंग कन्वेंशन देते हो जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो आपकी कैंपेन किस रिगार्डिंग है, किस प्रोमो के रिगार्डिंग है, कहाँ पर शो हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक नेम दिया है, नेमिंग कन्वेंशन दिया है, दैट इज SG स्मार्ट होम प्रोमो नेम कन्वर्जन्स। सो कैंपेन लेवल पर आप नेमिंग कन्वेंशन देते हो जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो अपनी कैंपेन को, आपकी कैंपेन किस रिगार्डिंग है, कौन सी कंट्री के लिए आपने कैंपेन को क्रिएट किया है। एंड इसके अंदर आप बाई टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद ऑप्शन आता है एडसेट लेवल पर, जिसमें आप अपनी प्रोस्पेक्टिव इंटरेस्ट और ऑडियंस को अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फ्लाइटिंग अपडेट्स कर सकते हैं कि आपकी कैंपेन कौन-सी डेट से कौन-सी डेट तक के लिए रन होएगी। एंड उसके अंदर आप अपने प्लेसमेंट्स को, इन्वेंटरी को चूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं वो एड्स आती हैं जिसके अंदर आप अपने क्रिएटिव्स अपलोड करते हैं, कॉपीज़ अपलोड करते हैं। सपोज़ अगर आप फेसबुक पिक्सेल आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं है और अगर आप अपने इंप्रेशन टैग या फिर क्लिक टैग के थ्रू अपनी कैंपेन्स को ट्रैक डाउन करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी, वो सारी डिटेल्स आप एड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Now let's see optimizations and testing. Optimizations can be done on the access level like targeting, bidding, conversion events. And अगर हम बात करते हैं टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग can be done on multiple levels. Kind of you can do a bit. You can do testing on copies, creatives, buying types, target audience, placements, and creatives. Now, it's time for quick fire questions. I encourage you to comment your answers below. First question is, what is the benefit of running RNF campaign? Question number 2 is, name 3 different placements you can select other than feeds. Question number 3 is, name a conversion based ad format. So now let me take you through ad manager's dashboard. So सबसे पहले हम फोकस करेंगे लेफ्ट साइड में जितनी भी सेटिंग्स है उसको हम नेविगेट करेंगे, सारे टूल्स वहां पर देखेंगे कौन से टूल कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। मेटा लोगो के नीचे आपको 3 स्पेस बार 3 आपको बार्स मिलेंगे, उस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप सारे टूल्स को आप देख सकते हैं। हर आपको बिज़नेस सेटिंग्स में जाना है तो थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप पाएँगे उसमें आप अकाउंट क्वालिटी होती है, बिलिंग होती है, ब्रांड सेफ्टी होती है। इसी के नीचे आपको कैटेगराइज़ किया हुआ एडवर्टाइज़र्स के लिए कौन-कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, एनालाइज़ एंड रिपोर्टिंग्स के लिए टूल्स अवेलेबल है, एंड कुछ टूल्स नीचे भी अवेलेबल हैं जो कि कॉमर्स मैनेजर होता है। ये हम बाद में सीखेंगे, ये हमारे लिए क्यों हेल्पफुल होता है, क्यों हेल्पफुल नहीं होता है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो हम अपकमिंग वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। उसके नीचे आप देखोगे तो सेटिंग का ऑप्शन आता है जहाँ पर आप टैप करके, क्लिक करके किसी भी यूज़र्स को इनवाइट कर सकते हो या फिर उसको डिसेबल कर सकते हो, अपने एक्सेस
देने के लिए नहीं देने के लिए, इसमें फिर नोटिफिकेशंस अवेलेबल है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द कैंपेन और कुछ एड डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट फेसबुक रैप्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके, जहाँ पर आपके पास हेल्प का ऑप्शन आता है। सर्च बार के जस्ट नीचे कुछ भी क्वेरी सर्च करना, उसके नीचे आपको हेल्प का ऑप्शन मिलता है। अब हम फोकस करते हैं हमारे राइट हैंड साइड में जो सेटिंग है, जो टूल्स है, उसके ऊपर हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। सपोज अगर आप प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कैंपेन में कुछ भी एक्टिवेशन कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टारगेटिंग आपने अपडेट किया है, या फिर कुछ क्रिएटिव आपने अपडेट किया है, या फिर बिड स्ट्रेटजी अपडेट की है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे आगे नहीं जाना, मुझे रिव्यू पब्लिश करके इसको पब्लिश नहीं करना है, तो आप उसी उसी टाइम आप डिस्कार्ड ड्राफ्ट कर देंगे। जो भी आपने कैंपेन के अंदर चेंजेस किए हैं वो पब्लिश होने से पहले डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो उसी के लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन है, एक बटन है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेश टेबल डेटा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारा डैशबोर्ड आप रिफ्रेश हो जाएगा और आप न्यू स्टेट्स को भी देख सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने राइट हैंड साइड में जाते हैं तो आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री पे क्लिक करके आप कैंपेन के अंदर जिसने यूजर्स ने जो भी चेंजेस किए हैं, तो आप हिस्ट्री में वो चीज देख पाएंगे कि एंड आप एक चार्ट का ऑप्शन भी मिलता है जहां पर अपने कैंपेन्स को आप एनालाइज कर सकते हो, इनसाइट्स चेक कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपको एक डेट का फिल्टर मिलता है जहां पर आप डेट रेंज सेलेक्ट करके आप स्पेसिफिक डेट्स का, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का आप स्टैट्स देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन, एडसेट एंड एड्स। सो अगर हम पहले हम फोकस करेंगे कैंपेन के ऊपर। कैंपेन के अंदर सपोज आपको कोई फ्रेश कैंपेन क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर पे क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। उसके थोड़ा ओवर राइट हैंड साइड में थोड़ा आगे जाएंगे, आपको एडिट का, रिप्लेस का ऑप्शंस अवेलेबल होता है, ए बी टेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, बल्क अपलोड्स यहाँ पर होते हैं, रूल्स आप क्रिएट कर सकते हो, कोई भी रूल्स को मैनेज कर सकते हो, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में फोकस करेंगे। सो इतना ही था आपको बताने के लिए, आपको नेविगेट करने के लिए एड मैनेजर पे कौन कौन सी सेटिंग्स, कौन कौन से टूल्स आपको कहाँ पर अवेलेबल होंगे। जितना हम आगे बढ़ेंगे अपने आने वाले सेशंस के अंदर, लेसन्स के अंदर, वो चीज़ें मैं आपको और कवर करवाऊंगा, आपको रियल टाइम पे आपको एक्सपीरियंस गेन करवाऊंगा, जिससे आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। Like the basics of all Facebook ads so that you have a better understanding what Facebook ads is. If you want to see more of this series, make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. Thank you so much guys, and I will see you in the next.